हेलो एवरीवन। नाउ दिस इज़ द लास्ट चैप्टर फ्रॉम योर मैथ्स वर्क्स बुक। ये है हमारा डाटा हैंडलिंग। तो आज हम डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले डाटा, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाटा के बारे में, डाटा कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेली मार्क्स, वेक्टोग्राफ, बार ग्राफ, मीन एंड मीडियन। ओके, तो सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज डाटा। ओके, so in our daily life we come across many situations where we need to collect the information in the form of facts or numbers. Okay, for example, number of different type of houses in a village, number of buses crossing a certain road junction in a particular time, number of shops in a shopping mall selling textiles, speeds of bikes, cars, and other vehicles passed along a specific highway. Thus, the numerical information of facts called collected as are known as data. Okay, उसे हम डाटा कहते हैं। जितना भी हमें फैक्ट्स मिलते हैं, जितने भी हमें नंबर्स मिलते हैं, इसको हम लोग एक अगर कहीं पे कलेक्ट करके रखते हैं कलेक्टिव फॉर्म में, तो उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, data is collected, measured, and analyzed, whereupon it can be visualized using graphs or images. In this case, the details cloud could consist of information like the name of the student, date of the birth, phone number for communication, etc. These are reserved for the drawing interface. Now let's see the data collection. Data collection plays a very crucial role in the statistical analysis. In research, there are different methods used to gather informations. There are many differences between primary and secondary data. Okay? So which we discussed in this article, but the most important differences is that primary data is factual and original, whereas secondary data is based on the analysis and interpretation of the primary data. तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्राइमरी डाटा। हमारा प्राइमरी डाटा क्या होता है? द लिस्ट ऑफ एब्सेंटीज इन द क्लास, अ सर्वे ऑन राइटिंग हैबिट्स of students conducted by a pen manufacturing company, the types of the leaves collected by the students by studying nature. Okay, these are the some टाइप ऑफ प्राइमरी डाटा। और हमारा सेकेंडरी डाटा क्या होता है? क्रिकेट स्कोर गैदर बाय द वेबसाइट, हमने वेबसाइट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन गैदर करी है, या न्यूज़पेपर के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन ली है, या किसी बुक या किसी अदर व्यक्ति के से हमने कोई इंफॉर्मेशन गैदर करी है, वो हमारा सब कुछ सेकेंडरी डाटा में आता है। ठीक है। Now, use of the data collection. The data collection are used to arrange the mathematically or logically so that the information can be looked up fast whenever needed, easily and efficiently. Data collection की नीड क्यों होती है हमें? डाटा कलेक्शन की नीड हमें इसलिए होती है, अगर हमें किसी भी चीज़ का फैक्ट्स या उसके बारे में जानना है तो हम उसको आसानी से एनालाइज कर सकें कि क्या फैक्ट, कितने कैसे फैक्ट्स हैं और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउ लेट्स सी द कैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। टू अरेंज द डाटा इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूस द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन in a very short time or less consuming time is called the representation of the data. We can arrange the information about favorite foods of various students as following. यहाँ पे एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्म दिया गया है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। There are marks indicate the 5 students above the table. It is clear that 20 students like guava, 25 students like apple, 15 students like orange, and 40 students like banana. Okay. And also we can also deduce that there are 100 students in the class. इससे हमें, इस कलेक्शन से हमें ये पता चलता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। There are the 100 students in the class. Here we will read tally marks table. अब हमें देखते हैं टेलीमार्क्स टेबल कैसा होता है। टेलीमार्क्स टेबल कुछ इस तरीके का होता है। 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स के अकॉर्डिंग हम टैली करते हैं। ठीक है। द फिफ्थ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल लाइन अक्रॉस द 5, 4 प्रीवियस 4। सी द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी गई है। ठीक है, ये हमारी टेबल है। ये हो गया हमारा Telemarks. Telemarks are a quick way of keeping track of numbers in a group of 5. One vertical line is made for each of the first 4 number. ठीक है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द फ्रीक्वेंसी इन द नंबर ऑफ द टाइम। The frequency is the number of the time and observation occurs. For example, frequency of eating food in twice a day or thrice a day for most of the person. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। Krishna is fond of reading book. The number of pages read by him on each day during the last 40 days are given below. यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको टैली करने के लिए टैली मार्क्स से कैसे टैली करेंगे। यहाँ पे हमको एक टेबल बनाई गई, हमने एक टेबल बनाया जिसमें नंबर ऑफ पेजेस सबसे पहले लिखे, फिर इसके बाद में टैली मार्क्स कैसे करना है वो डाला, फिर फ्रीक्वेंसी डाली, इसमें कैसे कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, और इस तरीके से हमने इसको टैली किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है विच इज़ रिलेटेड टू टैली मार्क्स एंड प्रीवियस टॉपिक्स। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। ओके, अब हमें क्या होता है, हमारा पिक्टोग्राफ क्या होता है, व्हाट इज द पिक्टोग्राफ। अ पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ शोइंग डाटा यूजिंग इमेजेस। हम किसी भी डाटा को अगर इमेजेस के थ्रू पे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पिक्टोग्राफ के अंदर आता है। लाइक यहाँ पे द नीड ऑफ स्केलिंग, यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है, एक इमेज दी गई है जिसमें हम फ्रूट, नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड नेम ऑफ द फ्रूट्स दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये आपको एक दिया गया है, इसमें नेम ऑफ द फ्रूट मैंगो और नंबर ऑफ द फ्रूट्स क्या है, एक मैंगो रिप्रेजेंट करता है। फॉर द अबव पिक्चर फोर full pictures and one half picture. From the above pictograph, the number of the fruits can be calculated easily. The number of the mangoes is equal to 4 full picture and 1 half picture. ठीक है, तो नंबर हमें 1 फुल मैंगो का नंबर हो गया 10 एंड हाफ मैंगो का नंबर हो गया 5। ठीक है, तो हमें फुल 4 मैंगोज हैं यानी यहाँ 40 हो गया, 1 हाफ मैंगो है यानी यहाँ 50 हो गया। इसी तरीके से हम एप्पल का भी निकाल लेंगे, बनाना का भी निकाल लेंगे एंड ऑरेंजेस के लिए भी नंबर्स भी निकाल लेंगे। तो ये हो गया पिक्टोग्राफी, जिसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ। ओके, नाउ ये भी पिक्टोग्राफी का एक तरीका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ब्रांडेड मोबाइल फोन सोल्ड इन 5 मंथ्स। ओके, जनवरी में एक ब्रांड सोल्ड हुआ है, ब्रांड बी कितना सोल्ड हुआ है, फरवरी में कितना सोल्ड हुआ है, मार्च में, अप्रैल में एंड मई में। ये आपको एक प्रॉब्लम दी गई है पिक्टोग्राफ के ऊपर विच इज़ वेरी इजी, आप आसानी से इसको कर लोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। अब आते हैं हम लोग अपने बार ग्राफ में। अब बार ग्राफ क्या होता है, अ बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ इक्वल spaced parallel bar whose length heights are proportional to the number of items given. A bar graph is a graphical display of the data using bar of the different height. आपको दिखाते हैं यहाँ पे बार ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। सुटेबल टाइटल इसको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक टाइटल दिया गया और वर्टिकल लाइन के लिए एक टाइटल दिया गया। फिर इसके बाद में ये टाइटल भी आपके प्रॉब्लम पे बेस्ड होते हैं। द वर्टिकल लाइन स्टार्ट फ्रॉम दी 0 टू द वैल्यूज, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई अकॉर्डिंग टू देम, एंड सेम यहाँ इसकी वैल्यू भी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन की 0 टू अकॉर्डिंग टू द आपको गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से हम एक बार ग्राफ बनाते हैं। अब एक बार ग्राफ से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइनली हमारे पास में एक बार ग्राफ है, वी गेट द बार ग्राफ विच इज़ ऑफ अ वर्टिकल टाइप। द कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हैज़ बीन शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ओके, हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर्स दिए गए हैं ये है नंबर ऑफ द मोबाइल सोल्ड, कितने हमारे मोबाइल सोल्ड हुए हैं उनकी डाटा है, और ये नंबर ऑफ द वीक है जो वर्टिकल लाइन में शो किया गया है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मोबाइल है,
ये हमारी वैल्यू दी गई है, इसमें 1 यूनिट मतलब 10 मोबाइल। ओके, तो ये हमारा था बार ग्राफ। तो बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आते हैं इंटरप्रिटेटिंग द बार ग्राफ। अब बार ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। द डाटा फ्रॉम द अवर लास्ट टू ग्राफ्स कैन बी इजिली इंटरप्रिटेड एंड एनालाइज एज फॉलोज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मोबाइल्स वर सोल्ड ऑन संडे इज 55। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं संडे को कितने मोबाइल सोल्ड हुए हैं, ये आप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 55। द मिनिमम नंबर ऑफ मोबाइल्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे विच इज 20। No, this is Wednesday. This is not Thursday, this is Wednesday. ओके, ये हमारे वेंसडे को सबसे कम मोबाइल सोल्ड हुए हैं विच इज़ 20। ओके, द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन अ वीक 50। ये आप इसे देखेंगे, ये है हमारे वीक में कितने मोबाइल सोल्ड हुए हैं 50, 45, ये है हमारा 40, 20, 35, 30 एंड 55। ठीक है, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे विच इज़ 275 मोबाइल्स हमारे टोटल सेल हुए हैं पूरे वीक में। ठीक है, ये इस डाटा से हमारा ये आंसर निकलता है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपको बार ग्राफ से रिलेटेड कुछ और भी छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए गए हैं विद सोल्यूशन। ये आपको लगाएं अगर आप घर पे, तो आपको बार ग्राफ कैसे बनाते हैं और कैसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसके बाद एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करिए। नाउ लेट्स सी द मीन एंड द मीडियन। व्हाट इज द मीन एंड द मीडियन। द मीन इज द सम ऑफ द डाटा वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द डाटा आइटम। ओके, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द odd number of the data item arranged in order for an even number of the item. The median is the mean of the two middle values. Okay, when the number of the observation is odd. ठीक है, तो मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, n+1/2 nth पोजीशन के लिए। व्हेन द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज n, देन द मीडियन की वैल्यू क्या होगी कि n/2 position, nth position and plus n/2 plus 1 position. Okay, so now let's see one problem related to mean and median. Okay, यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। उसका मीन हमें निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड करके जितने भी नंबर ऑफ डिजिट हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द डिजिट है हमारे n और टोटल सम ऑफ द डिजिट हो गया हमारा 41, और 41 डिवाइड बाई 9 आ गया हमारा 4.56 विच इज द मीन। और मीडियन हमारा क्या हो गया, nth वैल्यू ऑफ दी nth पोजीशन हमारी क्या थी n। हमारे काउंटिंग नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 9, तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 10/2 विच इज़ 5th पोजीशन। ठीक है, तो हमारा मीन एंड मीडियन निकल आया। तो मीन हो गया हमारा 5.56 एंड फिर मीडियन हो गया हमारा 5। नाउ मीन एंड मीडियन से रिलेटेड हमारे कुछ और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब उनको करिए। एक हमारे पास एक nth पोजीशन के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है, जिसको आप देखेंगे। इसमें हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा, इसमें मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा n/2 nth पोजीशन एंड n/2 प्लस 1 पोजीशन। तो यहाँ पे n की वैल्यू है हमारी 10, तो 10/2 यानी कि 5 हो गई 5th पोजीशन, एंड 10/2 प्लस 1 यानी कि 6th पोजीशन। तो 5th पोजीशन एंड 6th पोजीशन क्या थी हमारी, यहाँ पे 5th एंड 6th पोजीशन में 40 प्लस 45, तो हमारी मीडियन हमारा निकल आया 42.5। ये हमारा मीडियन निकालने का एक और तरीका है, इससे भी आप मीडियन निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है मीन एंड मीडियन से रिलेटेड, आप इनको करिए एक्सरसाइज को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए रहते हैं हर चैप्टर के एंड में, जिसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये सारे की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको पूरा चैप्टर मेमोराइज्ड हो जाता है कि आपने इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा था, कैसे-कैसे क्वेश्चंस करने थे और क्या-क्या प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी थी। ठीक है? तो इसलिए की पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद एक छोटा-सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिससे आपको रिकॉल होता है कि इसमें छोटी-छोटी चीज़ें आपकी क्या थी मेमोराइज़ करने के लिए। ठीक? तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो इससे आपकी पूरी बुक आज एंड हो गई है। आज आपका जो लास्ट चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं फिर से नए बुक के साथ। ओके, बाय बाय।